اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو السلام علیکم اپنی جانب سے کہتا ہوں اور انہیں بہت بہت رمضان کی مبارکباد اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں۔ آج میں کوئی بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کو صرف دو چیزیں میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کے بہت ہی زیادہ قیمتی ہوں گی۔ ان بہنوں کے جو اپنے رشتوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں اور ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں۔ مجھے 1 سال قبل پاکستان سندھ کے ایریے سے ایک کال آئی کہ ایک بہن کی کال آئی کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور والدہ بھی ہماری نہیں ہیں، کیونکہ والدہ کی ہماری ڈیتھ ہو گئی تھی ہماری پیدائش کے بعد۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور ان سے ہمارے بھائی ہوئے، بھائی جب پیدا ہوئے، اور ان والدہ کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل مختلف ہے۔ اور جب کوئی بھی رشتہ آتا ہے ہمارے ہاں آتا ہے تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ دل میں ہم کافی خوش بھی ہو جاتی ہیں کہ کوئی آس لگی ہے، رشتہ آیا ہے۔ ہم کافی وظائف بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں یا ہم سے ایسی کون سی خطا ہو چکی ہے یا کون سی ایسی لرزش ہو چکی ہے جس وجہ سے ہمیں، کیونکہ یہ دنیا کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر ہم یہاں پر نیکی کریں یا کسی کے ساتھ برائی کریں تو اللہ پاک اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ پاک سے استغفار بھی کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے ایسی کون سی خطا ہو چکی ہے، کون سی ایسی نافرمانی ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں اور ہمارے رشتے نہیں آ رہے۔ جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے استخارے کے ذریعے سے انہیں بتایا کہ آپ پر بندش کی گئی ہے، اور ماہ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ اس مقدس مہینے میں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ریلیٹیو میں، رشتہ داروں میں یہ بات بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے کہ جب وہ رشتے کے لیے آتے ہیں، رشتہ دار اکثر رشتے کے لیے جب آتے ہیں ان کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی ہیں اور کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یہ ساری خوبیاں اور خامیاں ہر انسان بخوبی سمجھتا ہے اور خاص کر والدین سمجھتے ہیں، اور اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ ان کی بیٹی کے لیے مناسب ہے تو وہ ہاں کر دیتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو وہ نہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر حسد کی وجہ سے آج کل آپ آئے روز پاکستان میں اس چیز کے بہت ہی زیادہ مخالف ہوں، جہاں تک ہو سکے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان میں جیلی عاملوں نے اور جیلی بابوں نے ہر طرح کے اشتہار لگائے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پر ہر وقت، کیبل پر ہر وقت ان کا ایڈ چل رہا ہوتا ہے کہ جائز کام کروائیں، ناجائز کام کروائیں، کسی کا رشتہ روکنا ہو، کسی کا، یہ سر عام ہو رہا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ اس پہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہی۔ جادو کروانے والا دراصل میں اللہ پاک کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اگر کسی کو کوئی عطا کرتے ہیں تو اس میں اللہ پاک کا ہی امر شامل ہے، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کی تقسیم سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو ان بہن نے، ان پر جادو کیا گیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ہم بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہیں۔ جب انہوں نے اس طریقے سے رونا شروع کر دیا تو میں نے کافی افسوس ہوا مجھے کہ اس قدر دنیا پریشان ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی زیادہ کالز آئیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان کا ذکر نہیں کر سکتا، ان پر بھی بندش کی گئی تھی۔ اللہ پاک جو انسان دوسرے کے لیے جادو کرتے ہیں اور برا سوچتے ہیں ان کے لیے آخرت میں تو ہے ہی عذاب کی جگہ، لیکن میں بتاتا چلوں کہ جب نزا کا وقت آئے گا، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا
उस इंसान की रूह इस बुरे तरीके से कब्ज़ की जाती है, इस बुरे तरीके से कब्ज़ की जाती है कि अगर वो उस वक्त जब किसी ऐसे शख्स की रूह निकाली जाती है जो किसी दूसरे पर जादू करता है, अगर वो देख ले तो सारी उम्र, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे घराने थे जो दूसरों पर जादू किया करते थे, और जब हमने देखा कि उनका नज़ा का वक्त करीब आया तो उनके पेट फट गए और उनकी कब्रों से रोने की आवाज़ें निकलने लगीं, और अहले मोहल्ला सारा खौफज़दा था कि ये मोहल्ले में ऐसी औरतों की वजह से, ऐसे इनके आमाल की वजह से, इनके बुरे आमाल की वजह से पूरा मोहल्ला और पूरा अहले वहाँ पर खौफज़दा थे कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं कब्र से। और जब मौत का वक्त ऐसा था, उनका मौत का वक्त, अल्लाह पाक माफ़ करे अगर मैं वो दर्दनाक मंज़र आपके सामने बयान करूं तो कभी भी नहीं बयान कर पाऊंगा, क्योंकि जो शख्स या जो औरत अल्लाह पाक की तकसीम से इख्तलाफ करती है, अल्लाह पाक से तकसीम पर इख्तलाफ करने वाला कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। न ये काम पैगंबर कर चुके हैं, न ये पैगंबरों ने किया है और ना ही ये फरिश्तों ने किया है। तो फिर एक इंसान को क्या मजाल कि वो अल्लाह पाक के तकसीम में इख्तलाफ करे, हसद की वजह से किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचाए, हसद की वजह से किसी दूसरे शख्स को जादू टोने की वजह से किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचाए, तो उसे अल्लाह पाक उसको सख्त तरीन अज़ाब में मुब्तला कर देंगे जो शख्स ऐसा करता है। तो उन बहन ने मुझे बताया कि मुझ पर इस तरह किया गया, और दीगर बहनों ने भी उन दिनों में मुझे बताया। तो मैंने उन्हें रमज़ानुल मुबारक का बताया कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आने वाला है, आप इस मुक़द्दस महीने में अपने अल्लाह पाक की जानब रुजू करें, और जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ उस अमल से आप फ़ायदा उठाएं। और मैंने उन्हें अमल करने का तरीका भी बताया। मैंने उन्हें बताया कि आप जब वजीफ़ा करती हैं तो आपकी दिली कैफियत क्या होती है, क्योंकि जब आप रटे रटाए जुमले कहती हैं तो इससे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। आप किस अंदाज़ में अपने अल्लाह पाक की जानब रुजू करती हैं, मैंने उनको अंदाज़ भी सिखाया कि आप किस अंदाज़ में अपने अल्लाह पाक की जानब रुजू करें और किस अंदाज़ में तस्बीह करें। आज मैं वो अंदाज़ भी आपको बताऊँगा। देखें, जैसा कि अभी रमज़ानुल मुबारक है, अब इस वक्त अफ्तारी से पहले का टाइम है, और ये टाइम ऐसा है कि जब हमें प्यास लगती है तो हमारा ख्याल पानी की तरफ चला जाता है, फ़ौरन पानी की तरफ चला जाता है, मगर हम ज़ुबान से कभी भी पानी पानी नहीं पुकारते, बस ख्याल सारा दिन पानी की तरफ रहता है। तो जिस तरह प्यासे आदमी का ख्याल तौबा ख्याल और उसका सारा माइंड पानी की तरफ चला जाता है, इसी तरह ये ख्याल दिल में पुकारा जाना चाहिए कि मेरा अल्लाह दिल में है, और दिल अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रहा हो, और अगर ज़बान खामोश हो, ज़बान तालों के साथ लगी हो, तो फिर भी उसका जो ज़िक्र है वो हर लम्हा दिल से निकलना चाहिए। तो इसके लिए किसी वज़ू की शर्त नहीं है, किसी जिस्म की पाकी की शर्त नहीं है, लिबास के पाक होने की शर्त नहीं है, तन्हाई भी शर्त नहीं है। 24 घंटे आप अपने काम में मसरूफ़ रह करके भी, कारोबार करके भी, सफ़र में भी, हवाई जहाज़ में भी, दिल में भी हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हों, अल्लाह पाक का हम्द सना बयान कर रहे हों, अल्लाह पाक की तस्बीह कर रहे हों, अल्लाह पाक ये जो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ ये कर रहे हों, तो ये आपका कामयाब रहेगा। मैंने उन्हें ये अंदाज़ भी बताया। अब इसको बनाने के लिए इंसान को काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं आपको अमल बता देता हूँ कि अमल क्या है। जब मैंने उन्हें अमल बताया तो उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ। अब अमल ये है कि आपने अफ्तारी से कम अज़ कम 20 मिनट पहले आपने एक गिलास पानी का लेना है। अगर पानी आपको ना मिल सके तो आप अफ्तारी से कुछ देर कबल कुछ खजूरें आप ले लें, 3-4 खजूरें आप ले लें। तो उन पर आपने सूरह फातिहा पढ़ते हुए जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंच जाएं तो 11 बार दोहरा लें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंच लें तो 11 बार दोहरा लें और फिर सूरह मुकम्मल कर लें। अमल क्या है मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ।
आप अपने पास लिख लें और ज़ुबानी आप इस अमल को समझ लें। आपने अफ्तारी से कम से कम 20 मिनट कबल आपने ये अमल शुरू करना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने ज़रूर पढ़नी है और दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। इसके बाद आपने सूरह फातिहा को मुकम्मल आपने पढ़ना है। जब आप सूरत फातिहा को पढ़ते हुए इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचें तो इसे 11 बार आपने दोहराना है। 11 बार इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने दोबारा से 11 मरतबा यहाँ तक उसे दोहरा लेना है और फिर 11 मरतबा दोहरा लेने के बाद आपने सूरह को मुकम्मल करके फिर आपने पानी पे दम करना है। पानी पे जब आप दम कर लें तो इस पानी को आपने अफ्तारी के वक़्त पी लेना है। सबसे पहले खजूर खाने के बाद इस पानी को आपने इस्तेमाल करना है। और इससे इंसान के अंदर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो इंसान का जादू है उसके जिस्म के साथ एक रूहानी मसला आ जाता है, तो ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और फिर इस तादाद में रिश्ते आने लग जाएंगे कि आप कभी सोच और तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक बात आप ज़रूर नोट कर लें। सबसे पहले ये चीज़ के ख़वातीन के लिए एयाम के दिनों में ये अमल हरगिज़ ना करें। जब एयाम के दिन हो आपने ये अमल हरगिज़ नहीं भी करना। और जिस पानी पे आप दम करें उस पानी को आपने ज़ाया होने से बचाना है, उस पानी को मुकम्मल पीना है। और इस अमल को कम से कम 4 दिन तक मुसलसल जारी रखना है। 4 दिन तक मुसलसल जारी रखना है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, इशा की नमाज आपने कोई भी नमाज नहीं छोड़नी। याद रखिएगा, ये अमल करते हुए कोई भी नमाज आपने नहीं छोड़नी। आपने अफ्तारी से 20 मिनट कबल एक पानी का गिलास ले लें, उस पर सूरत फातिहा को पढ़ते हुए जब इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचें तो इसे 11 बार दोहरा लें और फिर सूरह मुकम्मल कर लें। इसी तरह इसके अव्वल और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ के दम कर लें और उस पानी को सारे को आपने पीना है। और पी के फिर इंशाल्लाह 4 दिन तक ये अमल मुसलसल करते रहने से आपके जो रिश्ते हैं, बंद रिश्ते हैं, वो मुसलसल आने लग जाएंगे और बहुत कसरत के साथ आने लग जाएंगे। ये उन बहन को भी मैंने बताया था और मैंने बताया कि आप कुछ दिनों बाद फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और पूरे 1 हफ़्ते बाद, रमज़ानुल मुबारक में ही 1 हफ़्ते बाद उन्होंने फ़ीडबैक दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले रिश्ते आते थे लेकिन दोबारा वो राब्ता नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से हमें अब इतना अंदाज़ा हो जाता था कि अब उनमें दिलचस्पी नहीं रही। ये भी उन की तरह ही आते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि जब फिर तो हमने मेहमानों की मेहमान नवाजी जिस तरीके से की जाती है, क्योंकि हम गरीब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जब मेहमान आते हैं कुछ खाने को पेश करते हैं तो जितने रिश्ते आए हैं इससे पहले खाने को दे करके हमें कुछ भी रिस्पांस उनसे नहीं मिला। दिल टूट गया था, फिर हम कोई भी चीज़ किसी को नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जो रिश्ते आ रहे हैं वो मुसलसल हमसे राब्ते में हैं और एक रिश्ते को हमने पसंद भी कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारी बात भी तय हो चुकी है और बहन ने भी बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक दिए। तो मैं आपको भी गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ, जब आप अल्लाह पाक का ज़िक्र एक ऐसे महीने में और ऐसी नीयत के साथ करते हैं तो मेरे अल्लाह पाक आपको कभी भी मायूस नहीं करते। तो ज़िक्र करने का जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है उसके साथ आप ज़िक्र करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से रिश्तों की लाइन लग जाएगी। और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप सदक़े जारिया समझ के ज़रूर आगे शेयर करें। शुक्रिया।